Hi, Mega. Thank you so much for joining this conversation, the talk show, which is Extreme Gratitude. And I welcome you on this show. Thank you so much, Advait. Thank you so much for having me. Yeah, thank you. Thank you, Mega, for your time and for accepting this invitation. My Okay. pleasure. Yes, thank you. Okay, Mega. So to start with, you are a cabin attendant. I can see that senior cabin attendant, or we can Yes. say flight attendant. So just wanted to know from the beginning, Mega, like how did you get into this role? If you could tell brief about, what are some eligibility criteria for applying this role, and I would love to know, your how your current, day look like. I mean, a typical day looks like. So if you could tell us about that, please. Sure, Advait. So for this job, I was not at all prepared. मैंने कोई आइडिया भी नहीं रखा था कि मैं कभी भी एविएशन ज्वाइन करूंगी. आई थिंक डेस्टिनी प्लेड अ वेरी बिग रोल हियर. Mm-hmm. I started working as a ground staff in Indigo. Okay. I started working as a ground staff in Indigo, Mm-hmm. and फिर internally I opted for cabin crew, Okay. and वहीं से फिर मेरी flying की journey start हुई. Acha, okay. So you had applied, I mean, there was no plan to be a, flight attendant at No, all. no, not at all. Okay. तो इंडिगो मेरे कॉलेज कैंपसिंग में आई थी. दे वर हायरिंग ग्राउंड स्टाफ्स. तो मैंने Okay. बस ऐसे ही बस ट्राई किया कि चलो एक बार दे के देखती हूँ. Right. एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड. एंड देयर वाज एन ऑप्शन ऑन अ स्टाफ ट्रैवल. एविएशन के सब लाइक एविएशन में ये Mhm. रहता है कि स्टाफ ट्रैवल बोल के होता है कि हम लोग को टिकट्स लाइक काफी बेटर रेट्स पे मिलती है. सो दैट अट्रैक्टेड मी एंड आई वाज लाइक ठीक है कि कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा बाद में. Okay. बट उसके बाद जब मैंने वहां स्टार्ट किया तो मुझे मेरी कंपनी Mhm. एंड यहाँ पे जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे आगे वो बहुत Mhm. अच्छे लगे. सो आई कंटिन्यूड एंड अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ. Great, great, great. But then this is interesting because like would love to know because I can understand some skills needed for ground staff, but of course, if you want to be a cabin, cabin crew part of that, there are some special skills, right? So, what are those some difference in skills that if you could talk us about that? Yeah. So for ground staff you need to be a graduate. ठीक है. Okay. Okay. So that is the eligibility कि आपको graduate होना चाहिए. Mm-hmm. And you should be fluent in your communication skills. And Mm. बस इतना ही लगता है. But Okay. graduate होना is mandatory. Okay. In cabin crew, the best part is कि आप after 12 ही apply कर सकते. You don't need any sort of course Mm-hmm. or any kind of graduation or anything as such for joining as a cabin crew. So that's the best part about it. Okay. Okay. So but then for you it's reverse, like you must be you have already done more than required and then you opt for the cabin crew. Yeah, cabin crew. Yeah. So But किस टाइप की yeah. मतलब एग्जाम में क्या पूछते हैं वो लोग, लाइक कि कैसा होता है? So इंटरव्यू में ऐसा नहीं रहता है कि आपको कुछ पढ़ के जाना है या कुछ ऐसा ही कुछ अच्छा. क्वेश्चंस पूछेंगे. They basically check your communication skills, whether you have a smiling face or not, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. लाइक कैबिन क्रू को जैसे देखते हैं लोग, जो हेल्पफुल होती है, जो हमेशा स्माइल करती रहती है, तो वही एक पर्सनैलिटी ढूंढते हैं जिनमें वो नजर आती है. एनी एयरलाइन वुड हायर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके. आई थिंक यहाँ पे कोई शायद ऐसी कोई मिथ भी मुझे लगती है कि हो सकती है, बिकॉज जनरल पीपल वुड फील कि हाँ भाई लाइक खूबसूरत होना ज़रूरी है, बस आपका फेस अच्छा होना चाहिए एंड यू मस्ट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन इंग्लिश, बस हो गया. आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन दिस. सो इज इट द ट्रूथ और कुछ और भी नो, skills नॉट हैं? एट ऑल, नॉट एट ऑल. अच्छा. पता नहीं ये नोशन कहाँ से आए हैं लोगों को. ओके. इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि आपको गोरा होना जरूरी होता है. यू नीड टू बी फेयर टू बिकम अ कैबिन क्रू. दैट्स अ मिथ. वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज इन आवर ओन कंपनी जो कि उनका थोड़ा सा उनका स्किन कलर शायद डार्क होगा, राइट, हेजल कलर का होता है, बट देन दे आर सो प्रिटी एंड दे लुक सो गुड इन द यूनिफॉर्म. सो देयर इज नो सच थिंग दैट यू हैव टू बी फेयर और आपको ये होना चाहिए, सुंदर दिखना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हैव अ स्माइलिंग फेस, एंड दैट स्माइल एड्स टू द ब्यूटी. राइट, तो बस इतना ही जरूरत है आपको. आई थिंक दैट इज योर स्माइलिंग की पसंद है. तो आपका हैबिट में आ गया शायद. नो बट थैंक यू. आई थिंक
हो गया अब। Right. And wanted to know, Megha, like your typical day, जैसे हम लोगों का एक होता है, so because that will be very interesting, क्योंकि जैसे दूर से हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, इन लोगों को तो ये सिटी में जाना है, फिर उसके बाद ये सिटी, फिर आज ये सिटी, और फिर कल से दूसरा. But yes, I'm sure there must be a lot that you all guys go through. So yes, if you talk या about that, yeah. तो लोगों को शायद लगता है कि हमें बस स्माइल करके, बस कुछ लोगों से बात करके हमारा जॉब हो जाता है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. Right. इट इज वेरी टफ जॉब, वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट अच्छा भी है. सो मैं आपको एक ब्रीफ देती हूँ कि मेरी दिन कैसे स्टार्ट होती है. सो हमारी कैबिन क्रू की कोई स्लीप साइकिल नहीं होती है, ठीक है. लाइक हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती है, आज कुछ दिन बाद आपको फिर नाइट फ्लाइट्स होती है, तो हमारी कोई स्लीप साइकिल नहीं होती है. तो जैसे कि अगर मेरी सोचिए सुबह की फ्लाइट हुई, सो आई गेट अप, आई गेट रेडी, उसके बाद कैब आती है, कंपनी प्रोवाइड्स कैब टू अस, तो हम जाते हैं कैब में, फिर कैब से हम फिर एयरपोर्ट जाते हैं. एयरपोर्ट में वी हैव टू रिपोर्ट 1.5 hours प्रायर्स टू अ डिपार्चर, ठीक है. वहां जाते हैं हम लोग, हम चेक इन करते हैं. सो लाइक जैसे आप लोग लॉग इन बोलते होंगे, लॉग इन करना, तो हमारा चेक इन होता है एक सिस्टम में, हमें चेक इन करना पड़ता है. फिर हमारा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है. सो दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरी फ्लाइट, ठीक है. बिफोर एवरी फ्लाइट आपको एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना होता है, जिसका मतलब जो दिखाता है कि आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं हो, बिकॉज आपको बहुत सारी लाइव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ लाइव्स, सो इसीलिए दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड हम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं, उसमें हम पास होते हैं. उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग रूम में जाते हैं, जहाँ पे जो हमारी सेट ऑफ क्रू होती है वो सब आते हैं, सब डिस्कस करते हैं कि आज फ्लाइट में ऐसा ऐसा सेक्टर्स है, इतने पीपल को सर्व करना है, सेफ्टी को ध्यान में रखना है, सब कुछ डिस्कस करके उसके बाद हम फ्लाइट के लिए बढ़ते हैं. तो फ्लाइट के लिए जब हम बढ़ते हैं, तो जब हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो हम इक्विपमेंट्स चेक करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जिसमें रहता है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फिर फर्स्ट एड किट्स रहते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो ऑक्सीजन बॉटल रहती है, जो कभी ऊपर में किसी को अगर ब्रेथ की थोड़ी दिक्कत हो गई तो फिर हम वहां से ऑक्सीजन देते हैं. सो वो सब इक्विपमेंट्स चेक करते हैं. उसके बाद फिर हम बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं. फिर पैसेंजर्स आते हैं, we welcome them with a smiling face. Yes. और उसके बाद फिर हमारी दिन स्टार्ट हो जाती है, जो उसके बाद फिर हम सर्विस स्टार्ट करते हैं. फिर ऐसे करते करते फिर लैंडिंग हो जाती है. सो हमारी जो शिफ्ट होती है ये कोई टाइम बेसिस पे नहीं होती है, तो सेक्टर्स के हिसाब से होता है. कभी आज 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, मैक्सिमम 4 होती है हमारी. तो उसी हिसाब से 4 एज इन एक दिन में 4 फ्लाइट, एक दिन में 4 फ्लाइट्स, 4 जगह जाना. ओके. हाँ. तो कुछ होती है जो हम रिटर्न आ जाते हैं, 4 सेक्टर्स करके हम रिटर्न आ जाते हैं, और कुछ होती है कि हम कुछ ऑपरेट करके कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरी सिटी विच इज आउटसाइड आवर होम टाउन, वहां पे रुकते हैं. वहां पे हमें कंपनी होटल प्रोवाइड करती है. फिर हम वहां से कुछ फ्लाइट ऑपरेट करके फिर हम वापस अपने बेस आते हैं. सो वो कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का होता है. अच्छा, बट that depends upon airline to airline कि वो कितना दिन का लेओवर्स क्या करते हैं. सब अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग होता है. हाँ. या उसके बाद फिर हम वापस आते हैं. फिर हमारी जो भी कैश वगैरह रहती है, जो सेल हुआ, वो हम ड्रॉप करते हैं मशीन में. एंड देन एज आई सेड कि हमारी कंपनी कैब प्रोवाइड करती है, हम वापस फिर अपने घर आ जाते हैं. ओके. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता नहीं होता कि कल रात आप कहाँ पे रुकने वाले हो, ऐसा हुआ? नहीं, हमें एक्चुअली 1 महीने पहले ही हमें पता चल जाता है हमारा शेड्यूल. जैसे कि अक्टूबर मंथ का हमें सितंबर 15 तक पता चल जाता है, 15-20 तक पता चल जाता है फॉर द एंटायर अक्टूबर मंथ. ओके. और आपने जो ड्यूटीज हमारी, उसमें कुछ ड्यूटीज हमारी स्टैंड बाइज भी रहती है. जैसे कि हमारी 30 डेज में कुछ फ्लाइट्स लगी है, बट बीच में कभी हमारे पास स्टैंड बाय बोल के एक ड्यूटी रहती है, जिसका मतलब होता है कि हमें अवेलेबल रहना होता है इन केस अगर कोई शॉर्टेज हुआ फ्लाइट में. जैसे कि कोई क्रू, उनका तबीयत खराब हो गया या कोई जा नहीं पाए फ्लाइट में, तो हमें वो 2 घंटे पहले डिपार्चर से या कभी उससे कम में भी वो हमें पुल आउट करते हैं फ्लाइट के लिए, एंड फिर हमें रेडी होके जाना पड़ता है फ्लाइट में. ओके. बट उस टाइम पे आपका अगर ऑलरेडी कहीं पे एलोकेशन हो चुका हो तो
अगर मेरा कभी एलोकेशन, सोचिए अगर मेरा आज के दिन में ऑलरेडी फ्लाइट असाइंड है, बट कंपनी रिक्वायर्स कि मैं उनका वो फ्लाइट करूं, तो दे हैव टू रिक्वेस्ट मी, सो दैट डिपेंड्स अपॉन मी वेदर आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट। ओके, अच्छा, ऑलराइट, ओके, गुड। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे हो रहे हैं, बट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड कि आप जब जाते हो वहाँ पे, यू नो, लाइक एयरपोर्ट, तो आपका पहले ब्रीफिंग होता है क्रू के साथ, उसमें आप लोग क्या डिस्कस करते हैं? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू डिस्कस? सो हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे फ्लाइट में अगर इन केस कोई एक सेफ्टी इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसका हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, क्या उसका बैकअप है। सोचिए अगर हमारे फ्लाइट में कोई इतने व्हीलचेयर लोग हैं जिनका तबीयत खराब है, तो उनको कैसे देखना है। और उसके बाद कोई सेक्टर्स है जो बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, जो स्पेशली छोटे सेक्टर्स में जब बहुत सारे पीपल को सर्व करना पड़ता है। तो when you say sectors, what is sector here? सेक्टर्स मींस जैसे कि कोलकाता, मैं कोलकाता से हूँ, सो कोलकाता से सोचिए अहमदाबाद गई मैं, वो 1 सेक्टर हुआ। अहमदाबाद से मैं आई मुंबई, वो मेरे लिए 2nd सेक्टर हुआ। मुंबई से मैं आई दिल्ली, वो मेरे लिए 3rd सेक्टर, और दिल्ली से फिर मैं कोलकाता, वो मेरे लिए 4th सेक्टर, बैक टू माय होम। ओके, अच्छा, ओके। सो वही हम डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो जैसे कि हमारे फ्लाइट में हमें पहले से इंफॉर्मेशन है कि कोई पैसेंजर स्ट्रेचर में है, मतलब हमारे फ्लाइट में स्ट्रेचर भी आते हैं, तो उनको कैसे देखना है, किस चीज का ख्याल रखना है, देखना है उनका सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उनके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है कि नहीं जो मेडिकली अप्रूव्ड हो, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट कि उनके साथ कोई एक होना चाहिए। राइट। तो ये सब आपको करना होता है, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी व्हेन वी गेट इनसाइड द प्लेन यू आर ऑलरेडी देयर, राइट? तो ये सब पहले आप लोगों ने कर लिया होता है। व्हेन स्ट्रेचर लगाने का या ब्रीफिंग करने का? नो, एनीथिंग रिलेटेड टू, हाँ, जैसे स्ट्रेचर का आपने बताया, या फिर कोई वो हमारे एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स करते हैं। अच्छा, ओके। वो पहले से सेट कर, हमारे जाने से भी पहले वो सेट रहता है। ओके। नाइस, इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। बट ये जो आपने ब्रीफिंग बताया वो दिन के सबसे पहले 1 टाइम होता है, देन आफ्टर यू नो द होल आइटरनरी। वो दिन के पहले, मतलब हमारा फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले होता है, और फ्लाइट खत्म करने के बाद डीब्रीफिंग होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं कि आपने अच्छा किया, आप ये चीज में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस, बिकॉज आपको पता चलता है कि हाँ, आई डिड गुड, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, और अगर मैं किस चीज में इम्प्रूव कर सकती हूँ तो चलिए उसका भी मुझे लोग बता रहे थे ये चीज है जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज दिस इज वेरी सिमिलर। और ये जो होता है, हाँ, आपका हर एक फ्लाइट के बाद होता है ऐसा, आफ्टर ईच सेक्टर? हर एक फ्लाइट के बाद। अच्छा, so at any day you get at least 3 to 4 feedback from your own crew. From your own crew. Actually this is very similar to what we do in IT industry. हमारा भी ऐसा एक होता है, we call it a retrospective meeting, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि what went well, what went wrong, and what are the things where we can improve. So good, I mean this is very I think for personal development all these things they help a lot, because अगर मुझे पता चले कि हाँ ये चीज में मेरी प्लस पॉइंट है और दूसरे चीज में मुझे इम्प्रूव करना है, तो that kind of instigates me कि हाँ ये चीज में मैं इम्प्रूव करूँ, और जो चीज मेरी अच्छी है उसको और स्ट्रेंथन मैं कैसे करूँ। सो अल्टीमेटली मेरी ही इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो इट इज अ थिंग व्हिच इज वेरी नाइस, and this is we need to learn from this airline industry that this happens like 4 times or 3 times in a day. हमारे यहाँ पे 15 दिन या 1 महीने के बाद ऐसा होता है। तो शायद हम आपसे ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। हाँ, that's what, and this is so good, right? इतना ज्यादा आपको फीडबैक मिले तो आप भी दो, सामने वाला भी आपको दे, तो you get opportunity to improve. So good. और ये सब मीटिंग में इवन पायलट्स भी होते हैं कि ओनली कैबिन क्रू? पायलट्स स्पेशली अगर कभी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है तो जॉइंट ब्रीफिंग होती है, जिसमें जो हमारे पायलट्स होते हैं और कैबिन क्रू सारे ही साथ में ब्रीफिंग करते हैं। वरना जब नॉर्मल कोई फ्लाइट होती है डोमेस्टिक की, तब लीड जो हमारी फ्लाइट मैनेजर होती है उनकी और कैप्टन्स की ब्रीफिंग होती है। अच्छा, तो ओके, फ्लाइट में कैबिन क्रू में एक फ्लाइट मैनेजर और उनके अंडर 3-4 फ्लाइट कैबिन अटेंडेंट्स या जो बोलते हैं वो ऐसा। ओके, अच्छा, ओके।
पर आपको पता होता है कि पायलट कौन है, और पायलट को पता होता है कि कैबिन क्रू में कौन-कौन लोग हैं? हाँ जी, बिल्कुल पता वो तो होता है। पता ही होता है ना? हाँ, हाँ, कि या राइट, राइट। हाँ। ओके। हमारे शेड्यूल में ही पहले से लिखा होता है कि ये क्रू है, ये कैप्टन है हमारे साथ। What are some specific things that you like about your job? फर्स्टली आई लव माय जॉब। पता Okay. नहीं, अगर फ्लाइंग नहीं है तो मैं और आई कैन इमेजिन माई सेल्फ डूइंग समथिंग एल्स, अच्छा। बिकॉज फ्लाइंग फॉर मी इज लाइक आई लव दिस जॉब स्पेशली बिकॉज यहाँ पे यू गेट टू ट्रैवल, you get to meet people, like amazing people. You really get to meet amazing people every 2 hours, because एक flight 2 hours 2.5 hours से ज्यादा नहीं होती है. So every 2 hours you're meeting new people. उसमें से there are so many good people, and ये जॉब मेरी पर्सनालिटी को काफी डेवलप किया. पहले आई यूज्ड टू बी वेरी शाई. मैं ज्यादा बात करने में किसी से जो न्यू है मेरे लिए उनसे बहुत मतलब मुझे शर्म आता था, या मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बात करूंगी. बट अभी कम्युनिकेटिंग विद सो मेनी पीपल आई हैव गेन दिस कॉन्फिडेंस, यू नो, कि हाँ अभी मैं किसी से भी जाके कुछ भी बात कर सकती हूँ. हाँ, ये एंड स्पेशली ये जो ट्रैवलिंग जो है ना हमारे एविएशन इंडस्ट्री में, दिस actually adds to a lot of knowledge. ये नहीं कि आप सिर्फ घूम रहे हो मस्ती कर रहे हो, चलिए वो तो है ही, बट वो ट्रैवलिंग से जितनी नॉलेज आपको गेन होती है, मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं एक डेस्क जॉब कर रही होती तो मुझे उतनी गेन होती ये नॉलेज जितनी मुझे ये ट्रैवलिंग करके लोगों से मिलके नई नई जगह जाके हो रही है. सो मुझे फ्लाइंग बहुत ही अच्छा लगता है. आई नो ये जॉब इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए ये बेस्ट जॉब है. आई डोंट थिंक सो मैं कभी कंप्यूटर में काम कर पाऊंगी 4 दीवारी के अंदर. Right. Okay, so when you say it is difficult, if you could talk about what are some difficulties that you all have to face through, and some different kind of stress. हमारे अलग stress होता है, आप लोगों के कुछ होते होंगे. So if you could talk about that, maybe you can share some of your experiences as well. So difficult हमारा जॉब ये है कि हमें कभी इमरजेंसी हो जाता है, जैसे कि आप 39,000 फीट में आप ही फर्स्ट एडर हो, आप ही फायर फाइटर हो, आप ही सब कुछ हो. तो जो करना है आपको करना है. अगर किसी की जान जा रही है, सो वी आर ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड, वी आर ट्रेन्ड इन CPR, जो जिसको हार्ट अटैक होता है, जिनका या जो कोलैप्स कर जाते हैं, उनको रिवाइव करना. इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी, राइट? वी आर ट्रेन्ड इन दैट. एंड उसके बाद अगर सोचिए कभी फायर हो गया, सो यूजुअली अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, कहीं मैं आग देख रही हूँ, सो मेरा सिक्स सेंस बोलेगा कि वहां से भागो. बट कैबिन अटेंडेंट, आप वहां पे हो, आपकी अपनी लाइफ और बाकी सबकी लाइफ के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब आपको you're responsible for everybody's life. So आपको उसको फाइट करना है. Right. Yeah, so all these things are difficult. Yeah. And उसके बाद कहीं इमरजेंसी. आपने निर्जा देखी है? हाँ जी. Would you do that? Of course. I think once you become a cabin crew, वो आपके अंदर आ ही जाती है कि आपको अपने बारे में नहीं, आपको पैसेंजर्स के बारे में ज्यादा सोचना है. बिकॉज वो आए हैं फ्लाइट के लिए. ये सोचिए कि हम इतने वेल ट्रेन्ड है कि उनको अगर कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो वी आर देयर एंड वी विल सेव देम. देयर आर सम पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट दैट एंड हु डू नॉट नो सो मच. सो वो उतना कुछ पैसेंजर्स है जो उनको लगता है कि वी आर जस्ट नथिंग. बट अगर देखा जाए तो एक्चुअली कैबिन क्रू क्या क्या कर सकती है वो सोच भी नहीं सकते. अगर वो एक बार उनको समझा दिया जाएगा तो they will start respecting. No, I mean that's in fact this is a good platform if you could share, because मुझे एक दो चीजें मैंने भी पिछले 1.5 साल में काफी ट्रैवल किया है, most of the time through Indigo only, okay? So और मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया जहाँ पे I saw passengers behaving not exactly as rudely, but yeah, मुझे personally अच्छा नहीं लगा. I mean the way they interact with cabin crew and all. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं हूँ तो मैं सामने कुछ बोल भी दूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह पे हूँ कि
बट येस आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है. यू हैव टू आंसर very politely even though they are not respecting you. But I would love to know what kind of powers you have. So अगर आप पावर की बात करें, सो वी हैव द पावर कि हम चाहे तो वो पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं जिससे वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव दैट मच ऑफ पावर, बट वी डू नॉट वांट टू शो दैट बिकॉज हम किसी के लिए वो हैसल क्रिएट नहीं करना चाहते. सो वी आर काइंड इनफ. यूजुअली ऑल द कैबिन क्रूज आर वेरी काइंड इनफ. बट मुझे वो थोड़ा अनरियलिस्टिक ऐसे लगता है बिकॉज कोई भी बंदा अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है तो आप ऑफेंड फील करोगे यार. और ऐसा तो नहीं कि आप बोलते हो कि ठीक है यू ऑल आर काइंड, बट मन में तो अंदर रह ही जाता है. शायद मुंह पे तो नहीं बोल पाओगे पर मन में तो गाली बोल ही देता है कि राइट. सो ऐसा होता है आपके साथ? आई मीन लाइक हाउ ऑफन डू पैसेंजर्स बिहेव नॉट वेल? सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. अगर वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं तो देयर आर स्टिल चांसेस कि वर्बली हम उनको बोल के उनको फिर भी हम शांत कर सकते हैं. वर्बली भी बोल के हम उनको शांत कर सकते हैं. बट अगर वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं सो वी डू टेक पावर, वी डू यूज दीज पावर्स. राइट. ओके. Yeah, I mean it's there have been instances जिसमें हमने कितने सारे पैसेंजर्स को ऐसे लिस्ट में डाला है उनके हरकतों की वजह से. No, I think they should be conveyed in some form कि before onboarding happens and yes actually so, आप आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें लोग कुछ भी कर रहे, कुछ भी मतलब दे आर मिसबिहेविंग, बस वो वीडियो क्लिप आपको दिखाई देता है बट उसके बाद में उनके साथ क्या होता है वो नहीं दिखाया जाता है. अगर वो दिखाया जाएगा तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो इतना मिसबिहेव करते हैं वो सुधर जाएंगे. बिकॉज यूजुअली पैसेंजर्स होते हैं उन्होंने बस वीडियो रिकॉर्ड करके बस वो सोशल मीडिया में डाल दिया है एंड वो देख के शायद दूसरे लोग भी इनकरेज हो जाते होंगे वैसी बदतमीजी करने के लिए, बट दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर उसकी वीडियो अगर आती तो फिर उनको भी पता चलता. राइट. एक बहुत पहले एक रील या ऐसी कोई वीडियो फेमस हुई थी जिसमें आई थिंक नॉट अबाउट इंडिया बट यूएस के या कहीं पे कोई फ्लाइट अटेंडेंट थे. ही वाज अ मेल एंड आपको याद है वो जिस तरह से ही वाज एक्सप्लेनिंग द सिक्योरिटी, वो जो सेफ्टी पॉलिसी जो आप बताते हो ना, राइट, चार दीवारी, तो बहुत ही फनी तरीके से बताते थे. आई डोंट नो वेदर यू नो दैट वीडियो. मैं एक्सप्लेनिंग so yeah I have seen the video है ना. तो I mean like you do such things or like अभी तो we haven't but you don't know. right. Okay. Yes. What else, anything else that you would like to share? वैसे तो I love my job but बस अगर कुछ डिसएडवांटेज के बारे में मैं बोलूं तो ये यही है कि एक तो आपकी कोई स्लीप साइकिल नहीं रहती, देयर इज नो पर्टिकुलर शेड्यूल. ये एक डिसएडवांटेज है. और जो दूसरी डिसएडवांटेज है कि आप फेस्टिवल्स में मोस्ट प्रोबेबली आप काम करते हो. मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मोस्टली आप काम ही करते हो. सो लाइक वो बस थोड़ा लगता है बट यू नो व्हाट, हम त्योहारों में लोगों को घर पहुंचाते हैं, घर जाते नहीं है. ओह वेरी गुड. नाइस. तो हमने उसी में वो खुशी ढूंढ ली है एक्चुअली. ओह ग्रेट. मुझे एक चीज और भी जाननी थी. जैसे योर डेजिग्नेशन इज सीनियर, राइट, सीनियर कैबिन अटेंडेंट, एंड देन आपके अंडर जूनियर भी होंगे, आपके ऊपर भी मैनेजर होंगे. सो आपका ये प्रमोशन कैसे होता है, किस हिसाब से होता है? इट इज बेस्ड ऑन ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू सर्व और नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स, किस हिसाब से होता है? इट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट. ओके. हाँ, सो जब जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपके एक्सपीरियंस को देख के उस हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा. ओके. बट देन ठीक है, मैं फिर भी डिटेल में, आई मीन लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड एक्जेक्टली कि ऑफ कोर्स सम इयर्स तो ऐसा होंगे ना कि चलो आपको 2 साल ये पोजीशन पे बिताना ही है, देन आफ्टर लाइक यू हैव इनफ ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. ऐसा भी होता है कि यू हैव टू अप्लाई? और फ्लाइट मैनेजर यू कैन अप्लाई आफ्टर 2 years ओनली.
Acha, so now that you are senior, you can apply after 2 years. I mean, whenever you got this Yeah. opportunity. Since I'm Okay. a senior, now I can apply anytime wherever there's requirement. Since मैं कोलकाता की हूँ, तो I look for any requirements for Kolkata. But Okay, yeah, तो that depends. ये कैसे कि आप कोलकाता पे ही अप्लाई करोगे, बट नहीं, that is my personal choice. But अगर आपको प्रमोशन चाहिए ही, so there are different places which requires a lot of requirement. वहाँ पे कहीं पे चेन्नई में requirement है, कहीं दिल्ली पे requirement है. So if you're okay to shift, so you apply for that position, and if you अच्छा. get through it, so you will be placed in Delhi or Chennai or wherever there is requirement. अच्छा, क्योंकि आपके केस में तो इतना लोकेशन मैटर नहीं करता, बट आई थिंक इट्स अबाउट व्हेन यू, जैसे आपका कल से स्टार्ट होगा, तो बेसिकली सो आपका स्टार्टिंग कहाँ से है वो मैटर करेगा, और आपको कहाँ पे लास्ट में आपको वो छोड़ेंगे, दैट फ्लाइट विल यू नो. हाँ, starting should be from Kolkata and ending of the series should be in Kolkata. Okay. Right. आपने how many times you have been into flight? Very silly question, but How many times? तो हमारी जो experience है वो years या days के हिसाब से नहीं count होती है, hours के हिसाब से count होती है. So I have completed 3,000 hours. 3,000 hours in flight, right? Yes. Okay, which means divided by 2 if I do it, then So- around 150 flights, right? Yeah, Okay. you can say. आप count More नहीं than करते that, I ऐसा? believe. More आप- than that. Okay. Any rescue type of operations, जैसे आपको कुछ experience करना पड़ा या फिर Rescue type के operations not अभी exactly तक rescue but maybe emergency landing और ऐसा इमरजेंसी मेरे फ्लाइट में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मेरे फ्लाइट में कोई ऐसी इमरजेंसी हुई नहीं है, बट देयर हैव बीन केसेस, जैसे मेरी फ्रेंड के ही फ्लाइट में थी, इंजन में आग लग गई थी. यस, तो बट हमारी एयरक्राफ्ट्स आर वेल इक्विप्ड कि उसके अंदर ही एक्सटिंग्विशर रहती है जिससे वो उसको बुझा सके, एंड प्लस इवन द क्रू आर ट्रेन्ड इनफ कि वो पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर सके. और हमें 90 सेकेंड्स में वो पूरी फ्लाइट खाली करनी होती है जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन होती है, तो 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट. बट द फ्लाइट शुड बी ऑन द ग्राउंड, राइट? या हाँ, और मतलब शायद या तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले या फिर लैंडिंग करने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो. या ओके इंटरेस्टिंग. राइट. What else? Anything else? Because मैंने एक चीज देखी है, I was like I'm interested to know, आप लोग फूड खाते हो फ्लाइट का? I'm not criticizing, okay, but what I'm saying कि that food is very ऐसा लगता है कि stale है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, but आप हर रोज नहीं खा सकते. So I'm wondering like आप लोग हर रोज खाते हो वो फूड कि like you carry your own food, आप बनाते हो? Yeah, we carry our own food also, but sometimes when we fail to carry, तो we have food. ऐसा नहीं है कि वो food खराब है. Yeah. It's just that हाँ, घर का खाना से अच्छा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, right. Good. और आपका जैसे रिटायरमेंट प्रोसेस कैसा होता है? Is there any age bar कि जहाँ तक ही? No, there is no age bar. ऐसा नहीं है कि आपका कोई एज बार है. हाँ, शायद लोग देखे नहीं होंगे उतने एजेड लोगों को शायद काम करते, सो दे हैव अ नोशन कि आप लोग को जल्दी रिटायरमेंट ले जाना होता है. बट नो, इट इज नॉट लाइक मैंडेटरी कि आपको 30 के बाद या 40 के बाद यू हैव टू लीव. एक खुद पे डिपेंड करता है कि कौन कितना दिन काम करना चाहे. जब तक वो फिट है, जब तक वो फ्लाई करना चाहते हैं, तब तक they can fly. There is no mandatory like rules कि नहीं आपको इसके बाद नहीं करना है. वो खुद पे डिपेंड करता है. अच्छा, ओके. और जैसे कभी कुछ बीमार हो गए, जैसे फॉर 1 week लेट्स से यू आर नॉट वेल, तो पूरा शेड्यूल फिर जैसे आपके एब्सेंस में लोग अल्टरनेट में रहते ही है कि हाँ, तो मैंने आपको बताया होगा कि हमारी शेड्यूल में एक स्टैंड बाय बोल के ड्यूटी होती है. हाँ, स्टैंड बाय. तो जब सोचिए अगर कोई दूसरी क्रू लाइक वो सिक हो गई और उन्होंने सिक रिपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ स्टैंड बाय पे हूँ, तो आई विल बी पुल्ड आउट टू कवर दैट फ्लाइट. ओके. ग्रेट. और आपका और ऐसा कभी तो हमें पता नहीं चलता, बट आपका और पायलट का कभी कम्युनिकेशन होता है क्या?
हाँ बिल्कुल कम्युनिकेशन होता है. वी हैव एन इंटरकॉम, लाइक एक फोन रहती है जो हाँ कॉकपिट में भी रहती है और हाँ फ्लाइट के फॉरवर्ड और पीछे भी रहती है. हाँ, एक सो वो हम, जो, या हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, सो उससे हम कॉकपिट से कम्युनिकेट करते हैं. वो कौन सी बातें होती है आप लोगों को, पायलट के साथ क्या बातें करनी होती है? तो कम्युनिकेशन में बेसिकली होता है कि आगे कोई वेदर आ रहा है कि नहीं, कि टर्बुलेंस ज्यादा हो सकता है, तो वो कैप्टन इन्फॉर्म करते हैं क्रू को. एंड देयर इज ऑल्सो अ रूल कि एवरी 30 मिनट्स cabin crew has to call the cockpit crew every 30 minutes. अच्छा. वो इसीलिए होता है बिकॉज गॉड फॉरबिड कल को हम्म. किसी फ्लाइट में दोनों ही कैप्टन और लाइक फर्स्ट ऑफिसर जो होते हैं, हम्म. कैप्टन और को पायलट, हम्म. अगर दोनों ही किसी कारण से बेहोश हो गए, सो एटलीस्ट वी, इफ वी क्रॉस चेक कि अंदर पे सब ठीक है कि नहीं, तो वी कैन टेक एक्शंस. बेहोश क्यों हो गए? यू नेवर नो. कोई भी चीज सोचिए, जो को खाना ही खा रहे हैं, सोचिए होटल से खाना लेके आए, कुछ कुछ भी था कि वो लोग बेहोश हो गए, या वो लोग थोड़ी देर के लिए वो लोग काइंड ऑफ सेंसेस या. के बाहर चले गए. सो एवरी 30 मिनट्स वी हैव टू चेक. ओह, सो इट इज, आप लोग चेक करते हो चेक रादर करनी देन. होती है कि कैप्टन इज एवरीथिंग ओके, सब ठीक है, आपको कुछ चाहिए कि नहीं. वी जस्ट कम्युनिकेट नॉर्मली थिंग, बट एवरी 30 मिनट्स इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड. ओके, नाइस. ये सब चीजें पता नहीं होती हमें. ओके, राइट या राइट. और इन केस अगर दोनों बेहोश हो गए, सो हम भी लैंडिंग कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट वाओ, वी हैव टू कम्युनिकेट विद द ग्राउंड पीपल, रियली? एंड दे विल गाइड अस कि ऐसे से करो. इन केस इफ देयर इज नो यू पायलट कैन. ऑन बोर्ड, हाँ 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 हाँ. वी कैन, या वी कैन. Oh, 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 very good. Great, great. हाँ, of course, because normal public को तो Yeah, कुछ पता someone ही has नहीं. to land, right? Right, right. हाँ, yeah. Okay, okay. Nice, nice. What else? Anything about your uniforms and all? Uh, I'm not commenting on uniform, but मुझे ऐसा लगता है कि हर हर पूरे 10-12 घंटे एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहन के, एंड आई कैन अंडरस्टैंड जिस टाइप का आप लोगों का यूनिफॉर्म होता है, इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, राइट? तो आई मीन, लाइक यू एंजॉय इट, और लाइक आपकी भी मजबूरी है यार, लाइक आप लोग कभी बोलते हो कि नहीं, आई थिंक दैट शुड बी चेंज. मैंने रिसेंटली देखा है अकासा एयर में, दे हैव अ डिफरेंट यूनिफॉर्म फॉर फीमेल्स, राइट? So yeah, I mean, anything you want to talk about that? See, I told you this job is not easy, right? Yeah. हाँ, या 12 घंटे कभी हो जाती है जब हमें वो यूनिफॉर्म पहन के वो स्कार्फ एंड ऑल लगा के हमें रहना पड़ता है विद अ स्माइल. So times are difficult, but then that's fine. We have accepted. I think we all wanted to become a cabin crew, and we all have imagined ourselves in such uniforms. चाहे वो 12 घंटे हो या 20 hours हो, we will not imagine ourselves in night suit kind of kapda. We will imagine ourselves in that kind of dress only. Okay, okay. Yeah. So when you say you do not have a proper sleep cycle, do you meditate, or like a I relaxation? personally do yoga, and sometimes I don't like going to the gym, so मैं घर पे ही जितना हो सके. But yeah, I do breathing exercise and yoga. That has helped me a lot, especially after COVID. Okay. By the way, how was the COVID experience like? COVID experience was bad for everybody, I believe. Yeah. But I think the airline industry was impacted a lot, right? Yes, it was impacted a lot, but then by the grace of God, अभी वो वापस से अच्छे पोजीशन में स्टैंड कर गई है. नहीं, क्योंकि ऐसे सुना था कि काफी लोगों को ले ऑफ किया गया था एंड ऑल, राइट? सो दैट वाज ट्रू, राइट? Yeah, it was true, and it was misfortunate. Can't help it. COVID ऐसा situation, ऐसा टाइम था कि क्या ही बोलो. We just don't want to comment on it. Right. No, I understand. Okay, Megha, I think I am good from my side. I had a lot of curiosity to ask so many questions around these topics. So yes, but before we close this, anything that you want to share? Maybe you want to give a message to the passengers or normal people, anything. You can talk about on behalf of your whole
all the cabin crew. Yeah. So, for the passengers, I would like to give one nuskha कि Mm-hmm. सर्विस इंडस्ट्री में, नॉट ओनली एयरलाइंस में या कहीं पे भी, ये Mm. टिप है छोटा सा कि अगर आप कोई भी सर्विस वाले प्लेस में जाते हैं, सो इफ यू वांट अ गुड सर्विस, फर्स्ट यू हैव टू बिहेव नाइसली, तभी यू विल गेट अ गुड सर्विस. सो पहले आप अच्छे से बात कीजिए, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ आपको जो नॉर्मल सर्विस है उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा. बट इफ यू जस्ट कम एंड कंप्लेन, देन आई एम नॉट श्योर कि यू विल बी सेटिस्फाइड और नॉट. Okay, so that's a good point. I mean, I'll take only 5 minutes more. When you say complaint, what kind of complaint you often get from passengers? Sometimes people purposely complain so that they get a good service. Sometimes they expect कि कुछ policies के बाहर जाके भी उनका कुछ होना चाहिए. Just in case, सोचिए किसी पैसेंजर ने लास्ट में वेब चेक इन किया, ठीक है, लास्ट में वेब चेक इन किया और उनको लगा कि चलो क्रू को जोर से बोलूंगा कि मैंने तो विंडो सीट बुक किया था, ऐसे कैसे हो गया, एंड दे स्टार्ट शाउटिंग. सो दे हैव बुक्ड द टिकट, राइट? सो देखा जाए तो वी रियली कांट डू एनीथिंग वो मैटर पे. बट अगर एक पैसेंजर आए और नॉर्मली बोले एंड रिक्वेस्ट करे कि मैम I really wanted a window seat, क्या आप प्लीज देख सकते हो, तो there are certain things that we can overlook policies and we can help them. The person जो गुस्सा करके आया, we will just say कि सर आपने टिकट बुक किया था, I wish I could help you, but sorry but I won't be able to help you. हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं, but the one who came and अच्छे से बात करके रिक्वेस्ट करके बोला, we take extra efforts so that उसके वो जो needs है वो cater हो. Wow, good. No, I think this is very basic. So yeah, but ये basic is not at all basic. No, I understand. And to the aspiring cabin crew, I would wish all the luck to them. I will tell them कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है. ये जॉब ने, स्पेशली कैबिन क्रू ने मुझे जितना सिखाया है, आई एम नॉट श्योर मुझे कोई और जॉब सिखा पाता कि नहीं. आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि I am a cabin crew because I have personally developed a lot. मैं ज़्यादा अच्छी इंसान बनी हूँ इसके वजह से, which is a very important thing in today's life. You have to be a good person. Correct. I have started respecting people around me more. And this job is amazing, really. I think the best sunsets and sunrises you get to see, you know. Oh wow, yeah. This job is beautiful. Seriously, this job is beautiful. I wish कि जितने भी लोग who want to become a cabin crew, please take extra efforts. Please अच्छे से मेहनत कीजिए and please become a cabin crew, and just you will feel good after you look yourself in the mirror with that uniform. Yeah. Good. No, I'm so happy that I'm interacting with you. Since you are a very passionate person, you took it very seriously, your job, and you're doing it and you're happy, so yeah, I'm really happy. good Megha. Okay, thank you Megha, thank you so much for your time. Thank you so much, Advait. Thanks a lot. Yes, I really appreciate your time and whatever you are doing. I not only appreciate you but all your team members, everyone in this country. Thank you so much. Thanks a lot. It means so much. As a cabin attendant. By the way, what is the difference between air hostess and a flight attendant? There is no difference. It's just कि air hostess is a normal term used by everybody. Okay. And cabin attendant is a professional term used. Achha. Okay. Good. Okay, Megha. Thank you so much. Thank you, Advait. Take care. It was lovely sharing my experience and talking to you. Same here. Thank you, Megha. Thank you. Bye.